السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے تمام مسیحی برادری کو میری کرسمس اور قائد ڈے ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو لے کر بات جب بھی ہوتی ہے تو یقیناً یہی کہا جاتا ہے، یہی خیال کیا جاتا ہے، اسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا، قائد کا پاکستان۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ تاریخی جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان لاہور پہ، تو وہاں پر مجھے شرکاء سے، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، مختلف ایج گروپ سے تھے، اور پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ فیملیز بھی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، تو پوچھا ان سے کہ کیا عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بس پتہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حکومت میں آنے سے پہلے کے جو بیانات ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں، اور ہم یہ پوچھتے ہیں سوال کہ جو کہا گیا تھا ویسا ہو نہیں رہا، اور آپ سے بہت سی توقعات تھیں، اور ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اتنی بھی دیر نہیں ہوئی ہے کہ واپس نہ لوٹا جا سکے یا صورتحال کو بہتر نہ بنایا جا سکے۔ حکومت اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب بھی یہ سنہری موقع موجود ہے کہ ایک عام آدمی کو عمران خان صاحب سے جو توقعات ہیں ان توقعات پر پورا اتریں۔ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اقدامات ضرور کیے گئے ہیں، ہر دور میں ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے صحت کارڈ لایا گیا، صحت کارڈ کے علاوہ دیگر اور پروجیکٹس ہیں، کسانوں کی بھی بات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز ہمارے پروگرامز میں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے کون کون سے پروگرامز ایک عام آدمی کے لیے شروع کیے ہیں تاکہ ان کو ریلیف ملے، اور یہ احساس بھی ہمیں کہ مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کے بوجھ تلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، گھر کا نظام چلانا بہت مشکل ہے، بجٹ مینج کرنا بہت مشکل ہے، لیکن عام آدمی کے لیے سبسڈیز کا بھی اعلان، اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سبسڈیز کا بھی اعلان ہوا کہ جی سبسڈی ملے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا نظام چلا سکے۔ آج کے پروگرام میں جی ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ مسرت صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے شیلا رضا صاحبہ نے۔ شیلا صاحبہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے دانیال چودھری صاحب نے۔ دانیال صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے دانیال صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ کسی ڈیل کے تحت اگر واپس آ رہے ہیں تو واپس آئیں گے، اور اگلے مہینے کی اطلاعات ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے اگلے مہینے شاید واپس آئیں گے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اور فواد چودھری صاحب کا ایک بیان ہے جو ٹویٹر پر ان کا یہ بیان آیا سب کے سامنے، اور اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وطن واپسی کے لیے ڈیلوں کا انتظار کر رہے ہیں وہ سیاست میں بونے ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی نون لیگ والے بوٹ پالش کا سامان لیے کھڑے ہیں، کوئی بوٹ آگے نہیں کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے دانیال چودھری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب ہم کل بھی نہ ڈیل کے منتظر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا، پاکستان کی معیشت کو اس چوراہے میں آ کے کھڑا کر دیا کہ آپ نے تو کہا نا شاید ابھی بھی there is point for any betterment. I see no return for the economy to get better if these people continue. ہم کل بھی اپنی میاں نواز شریف صاحب، اپنی بیٹی اور خود اپنی بیمار بیگم کو جو اس کے بعد who died، میاں صاحب واپس آئے اور انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو فیس کیا اور ان تمام چیزوں کو فیس کیا، اور کورٹس کی لٹیگیشن ان تمام چیزوں کا حصہ بنا۔ پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی پاکستان کی سنگل لارجسٹ جماعت ہے، جس میں یہ تو انہوں نے آزاد بندے پکڑ کے اپنی جماعتوں میں زبردستی ڈالے، امپائروں کی انگلیاں دکھا کے۔ ہمیں نہ کسی کی کل ضرورت تھی نہ آج ہے، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف is the son of this soil, he's the son of this country, he will be back۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اگلے سال جو بھی الیکشنز ہوں گے اس میں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ابھر کے پھر آگے آئے گی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی جو گروتھ کے حالات کر دیے ہیں، پاکستان میں بے روزگاری کا، پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، ان تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ There is no other way۔ لیکن کیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اور اگر واپس آ رہے ہیں تو اب مکمل صحت یاب ہو گئے؟ وہ سرجری کا ہم سنتے رہے ہیں اب سے کئی ماہ پہلے سرجری ہونی ہے، لیکن پھر بتایا گیا کہ جی وہ کووڈ کی وجہ سے ملتوی ہوتی رہی ہے، تو وہ سرجری بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں جی ان کے ملٹیپل پروسیسز ہوئے ہیں،
ملٹیپل چیزیں ہوئی ہیں جس کو پارٹی کے ڈاکٹرز اور پارٹی کے ہم بار بار ڈفرینٹ سٹیجز میں بتاتے رہے، لیکن میاں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ انشاءاللہ وہ جلد ہوگی، اور آپ اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف پاکستان مسلم یونین کے قائد اپنی صحتیاب ہو کے پاکستان میں انشاءاللہ اپنے ووٹرز اور ورکرز کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک، مسرت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، نہ ڈیل نہ ڈھیل، ڈھیل والی بات تو خیر آپ کہتے ہیں کہ ڈھیل ہم نے نہیں دینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی ممتاز صاحب۔ دیکھیں ان کی یہ جتنی بھی ساری ماشاءاللہ انقلابی باتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر میں یہی کہوں گی کہ سنتا جا شرماتا جا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انقلابی لیڈر تھے جو ابھی جن کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس، اور سب سے انٹرسٹنگ چیز ابھی جو میرے بھائی نے بات کرتے ہوئے کہ پارٹی کے ڈاکٹرز، بالکل صحیح، ڈاکٹر مریم نواز، ڈاکٹر احسن اقبال، ڈاکٹر خواجہ سعد رفیق اور ان کے دونوں بیٹے ڈاکٹر، یعنی کہ ہم پٹ کے مر گئے اس ملک کی عدلیہ بھی کہ بھئی آپ جو ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہیں ان سے اوپینین، پریسکرپشن، ان کا جو ٹریٹمنٹ کا روڈ میپ ہے وہ دیں، تو آگے سے کوئی نہ کوئی ان کا سیاسی مقرر، سیاسی ڈاکٹر تشریف لاتا تھا، اور وہ یہ اور اسی طرح کے سیاسی بیان داغ دیتے تھے کہ جی بس ان کے علاج میں اب یہ، اور پھر اس کے بعد نئی ٹرم آئی ہوا خوری کی، اور پھر شاپنگ خوری کی، اور پھر ماشاءاللہ سے پھر سیزن شروع ہوئے، ویڈنگ سیزنز، اور پھر آج کا تماشا آپ کے سامنے ہے کہ جی اب وہ اگلے مہینے دیکھیں۔ ایک تو یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ پیدا ہی ڈھیل اور ڈیل کے لیے ہوئے ہیں، سیاسی پیدا ہونے کی بات کر رہی ہوں، اور یہ اتنے سیاسی بونے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو زمین کے اندر سیاسی طور پر دفن خود کیا ہے، اپنی سیاسی قبریں خود کھودی ہیں، اس کی وجہ کہ ادھر ان کے جو ورکرز تھے جو کہ اب پروموٹ ہو چکے ہوئے ہیں، قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ سے 2500 تک ان کا ریٹ بڑھ گیا ہے، چلیں کم از کم ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم ان کے لیے اپنے آپ کو چھریاں ماریں، ہم انہوں نے قرآن خوانی کی، باہر ہاسپٹل کے باہر کل خوانی شروع ہو گئی، اور وہ میاں صاحب ماشاءاللہ سے چھلانگے مارتے ہوئے انہوں نے اپنا جو زبردست ایئر ایمبولنس کا جو ہوائی سفر شروع کیا، جو کہ جا کے ہوا خوری میں جا کے پھر تبدیل ہوا، اور کوئی کسی نے ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتے نہ دیکھا، پھر وہ پلیٹلیٹس کاؤنٹس، اور وہ اتنی ویسے آسکر وننگ پرفارمنسز تھی ان کی ایکٹنگ کی، اور یقین مانے میں تو خود آنر آج ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہمیں سچ میں ہی لگتا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، اور ہم دعا گو تھے کہ یہ صحتیاب ہوں، اور سب کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں، کیونکہ یہ اتنے زبردست منہ بنا کے ان کی بیماری کو اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ ورکرز نے جینون چھریاں ماری، جس نے زخم کیے، جن کی بلیڈنگ ہوئی وہ تو اوریجنل تھی، ان کی بیماری جعلی بہرحال نکلی۔ پھر اس کے بعد ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ انقلابی ہیں نہیں ہیں، یہ ڈیل کر رہے ہیں ڈھیل کر رہے ہیں، ہمارا مدعا وہیں کھڑا ہے کہ جو انہوں نے چوری کی ہے، یہ جو انہوں نے ماشاءاللہ سے ابھی، میں یہ مانتی ہوں علی ممتاز کہ جو آپ کی جو ارننگ ہے اس کے حساب سے آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے، آپ چاہے نیک کام کرتے ہو کہ نہیں، چیریٹی کرتے ہو کہ نہیں، وہ آپ کا ذاتی فعل ہے، لیکن بہرحال آپ جو خرچے کرتے ہو وہ آپ کا بزنس، آپ کے ایسٹس، اس کو میچ کرنے چاہیے۔ تو یہ مجھے بتائیں کیپٹن صفدر کی آمدن کیا ہے، مریم صاحبہ کی آمدن کیا ہے، ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے، جنید کا ذریعہ روزگار کیا ہے، جو کیا یہ تو اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کی منی ٹریل نہیں دے سکتے، اور ہماری قوم نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ایون فیلڈز اور یہ جو اپارٹمنٹس اور یہ جو پوری دنیا میں انبار لگی ہوئی جائیدادیں اور دولتیں، ہمارا مدعا ایک ہے کہ ملک میں کے اندر رہیں یا باہر رہیں، یہ کرسمس ادھر کریں یا ادھر کریں، عیدیں ادھر کریں یا ادھر کریں، ملک کا لوٹا ہوا چوری کا مال واپس کر دیں۔ پاناما لیک سے جو کہانی شروع ہوئی تھی، ہماری پھر بھی وہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ اس ملک میں بڑی غربت ہے، اس ملک میں لوگوں کے لیے واقعی مہنگائی ہے، 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے، تو اس میں جو آپ نے لوٹا ہوا دولت ہے وہ دے دے گا واپس کر دیں، اور یہ شو آف منی کر کے لوگوں کو مزید محروم نہ کریں، جن کے لیے آپ یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے کر کے روٹیاں گلے میں ڈال کے، ورکرز کے گلے میں ڈال کے، اور خود ان کی بھوک کا تماشا لگاتے ہو آپ اس طرح سے کہ ہماری کوئی آمدن نہیں ہے، میں بے روزگار ہوں، میرا میاں بھی وہ 1500 ریال پتہ نہیں کیپٹن صفدر صاحب بتاتے ہیں، تو پھر یہ اتنی عیشو عیاشی، یہ پیسے کی ریل پہ پیسے کو پانی کی طرح بہانا، اس کی منی ٹریل دے دیں پلیز، یہ جو ابھی خرچے کیے ہیں اس کی منی ٹریل دے دیں، سمپل، اور شیلا صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، واپس کر دیں، چاہے ادھر رہیں یا ادھر رہیں، اور آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ کورٹ سے آپ لے کے گئے تھے، میں آخری بات کروں گی،
ان کو چھٹی ملی تھی कोर्ट से, कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था, इस मुल्क की सबसे आला अदलिया ने, और कम से कम वापसी पे जब इनका वीजा मेरा ख्याल एक्सपायर हो गया है, या ये जो इनकलाब इनका बीमारी खत्म हुई है तो इनकलाब शुरू होने वाला है, फिर इनकलाब का वक्त हुआ चाहता है, उसके लिए कम से कम इस मुल्क के इदारों को जरूर बताएं कि ये गए क्यों थे और ये आए क्यों बात करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत को टफ टाइम देने की बात करती है, तो कैसे टफ टाइम दिया जाएगा? आप समझते हैं कि आप बेहतर पोजीशन हैं कि एक तरफ पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि जी मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले गए, और पीटीआई ये कहती है जी आपके सामने इनकी कारकर्दगी है, ना अहल नालायक हैं वगैरह वगैरह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब तो पाकिस्तान में ही हैं, बीमार भी रहे लेकिन पाकिस्तान में ही रहे, तो आप समझते हैं कि यूर बेटर पोजीशन इन कंपैरिजन इन दिस पॉलिटिकल सिनेरियो जहां पर पीटीआई भी है और पीएमएलएन भी है? देखिए, फैसला अगर अवाम ने करना होता तो इसका जवाब सीधा होता, लेकिन अब बात क्योंकि बड़ी गंभीर हो चुकी और हम ये समझते हैं कि जो तकालीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी सियासत में उठाई हैं, उसके अशर भी कोई नहीं उठा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर हैं और अदालतों का सामना कर रहे हैं, कहीं भाग नहीं रहे, अपनी जद्दोजहद करते हैं, अपने नजरिए को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो है आपके सामने खड़े हैं। अब बात देखिए करने की ये है कि अदालत ने नहीं भेजा नवाज शरीफ, अदालत ने मोडालिटी तय की और उनकी पार्टी के डॉक्टर्स को छोड़े डॉक्टर यास्मीन और आपके डॉक्टर्स बाहर आकर उनकी तबीयत बताया करते थे। ठीक है, एक तो हमें ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, और बात इतनी सी है कि अदालत में जो खड़ा हुआ है अदालत में साबित होनी है चीज, लेकिन पीटीआई तो अदालत में नहीं खड़ी, पार्टी फंडिंग केस में भागी भी है और जो उसके बहुत सारे केसेस हैं, मामलात हैं, बीआरटी पेशावर के मामलात हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता। मालम जब्बा है, चीनी और इसकी गंदम के ऊपर के मसाइल हैं और दवाओं की कीमतें हैं और बहुत कुछ। और अब तो ये हाल है कि जब हम आपसे प्रोग्राम कर रहे हैं कि इनके अपने एमएनएज जो हैं वो इनके मिनिस्टर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपने पार्टी को तो रिस्पॉन्ड ना करने पे, सही रिजल्ट न देने पे डिसॉल्व कर दिया। ये बताएं कि ये एमएनएज गलत है या मिनिस्टर गलत है। ये हैरानी हो रही है मुझे कि अब कैबिनेट में ये बातें होती हैं कि हम अपने हल्के में कैसे जाएं, कुछ भी नहीं दे सके। फिर इसके साथ साथ ये भी पता चला है और आज सब देख भी रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी जो है वो अब असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर अपने खिलाफ मुजाहरा करेगी, क्योंकि वो खुद भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो नए तरीके की बातें हैं, मैं समझती हूँ इन पे तवज्जो दें जो अपोजिशन पार्टीज हैं। आज या कल जब भी नवाज शरीफ साहब को आना है अदालत का, उन्होंने सामना करना होगा। पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन क्यों है कि इमरान साहब ये कह रहे हैं कि ये अपने मुकदमे खत्म कराना चाह रहे हैं, मुकदमे खत्म हुए तो मैं जेल खोल दूंगा। कुछ वज़रा कह रहे हैं कि भाई वो उनका वीजा खत्म हो रहा है, कुछ वज़रा कह रहे हैं कि भाई अब ये नहीं चलेगा। तो आप लोग इतने कंफ्यूजन का शिकार क्यों हैं? यहीं से मैं शैला साहबा को बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद हम वापस लौट कराएंगे, तो यहीं से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कंफ्यूजन वाली जो बात की है शैला साहिबा ने, इस पर हम मुसर्रज शेख चीमा साहब भी राय लेंगे, और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वापसी कब और किस तरह से होगी, क्या वापस आकर इसके लिए तैयार हैं कि जाएंगे, जेल में जाएंगे और जो केसेस हैं उनको फेस करेंगे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी दानियाल चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब की अगर वापसी एक्सपेक्टेड है अगले महीने, तो पीछे दिन ही कितने रह गए हैं अगला महीना, जनवरी का महीना शुरू होने में, तो कुछ तय तो हुआ होगा कि वापस आएंगे, तो क्या तय हुआ है? क्या अदालतों में जेल जाएंगे, फिर जो केसेस हैं उनका सामना करेंगे, कैसे होगा वापसी उनकी? आप लंदन में, आप बेहतर बता सकते हैं।
अली साहब, पहले तो मैं एक चीज का आंसर करूं कि यहाँ मैंने देखा कि देखें, इनकी आज भी हम इनकॉम्पिटेंस, हमारी इतनी पाकिस्तान हियर टुडे वे वी स्टैंड इज बिकॉज ऑफ शेयर इनकॉम्पिटेंस। जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो गंदम एक्सपोर्ट हो रही थी, आज इंपोर्ट हो रही है। शुगर एक्सपोर्ट हो रही थी, आज इंपोर्ट हो रही है। और इसी तरह हर बात झूठ के ऊपर बेस करती है। इन्होंने कहा कि कौन सा टैक्स पे करते हैं, कहां से पैसे आए, इनके पास कुछ है नहीं। भाई हम बनी गाला वाले नहीं है कि लोगों के पैसों से और आपके पास कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम ही ना दिखा सके और महलात में नहीं, लेकिन उन्होंने वो सफदर, कैप्टन सफदर साहब की आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन कैप्टन सफदर साहब का उन्होंने हवाला दिया कि मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि मेरी नवाज शरीफ का नाम लिया, बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, फिर सफदर साहब भी कहते हैं मेरी भी कोई जरिया नहीं है आमदन का। शरीफ फैमिली का मैं आपको जरिया आमदन बताऊं, 1972 और 1973 से डी नेशनलाइजेशन के टाइम पे खाली एक इत्तेफाक फाउंड्री ने ओवर 100.79 मिलियन एक्सचेकर के अकाउंट में जमा कराए। रमजान शुगर मिल ने नेशनल एक्सचेकर के अकाउंट में ओवर 3 बिलियन जमा कराए। 158 मिलियन सेल्स टैक्स की मद में जमा कराए। चौधरी शुगर मिल ने 3.116 बिलियन जमा कराए चौधरी शुगर मिल्स ने। रमजान टेक्सटाइल ने ओवर 167 मिलियन पब्लिक एक्सचेकर्स के अकाउंट में कराए। इसी तरह हमजा बोर्ड मिल्स ने ओवर 1.63 करोड़ रुपीस कराए। आई कैन गो ऑन, इनकी और जो कंपनी चल रही थी। नहीं, वो भी शादी की तकरीब का हवाला दे रहे थे ना कि उस पर इतना जो खर्च किया गया वो कहां से पैसा आया। मुझे बताएं कि इन्होंने, इमरान खान ने आज तक क्या ट्रेल दिखा सका कि जो प्लॉट भी लिया था कहां से लिया था, कौन से जमाइमा के पैसे और कौन से क्या। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान की मैशत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो स्पोक्स पर्सन है जो आज भी नहीं मानते कि उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से महंगाई है, उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से गैस नहीं है। भाई आपके पास अब बिजली का शॉर्टफॉल अलग है, महंगाई, फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। आपका टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेशन खत्म हो गई है, अंडर इनवॉइसिंग हो रही है, आपका ट्रेड डेफिसिट आपका दिन ब दिन बढ़ रहा है। अली साहब, you've come to a point where there is no way forward for the economy. इनको लाने वाले भी हैंड्स अप कर गए हैं क्योंकि इनको पता नहीं है कि इतनी नालायक नाअहल हुकूमत जिसको पता ही नहीं, अपना होमवर्क करके नहीं आई और आज लोगों को ब्लेम। नवाज शरीफ साहब वापस कैसे आएंगे? और ये सफदर साहब ने जो भी ये शादी की तकरीब पे खर्चा किया, इसका भी जरा कुछ थोड़ी सी तफसील बता दें, क्योंकि ना मरीम नवाज साहिबा की कोई आमदनी है, ना कैप्टन सफदर साहब की कोई आमदनी है। अली साहब, अभी आपको मैंने शरीफ फैमिली के खाली टैक्स कलेक्शन की बात बताई है। प्रॉब्ली दे पेइंग, ओनली वन कंपनी इज पेइंग मोर टैक्स देन प्रॉब्ली योर एंटायर चैनल, और मेरा पूरे बिजनेस से ज्यादा पे कर रही है। तो आई एम श्योर दे कैन अफोर्ड इट, एंड यू कैन सी इट इन द टैक्स रिटर्न्स की जब एंड में पे करते हैं किसने क्या किया है, सैफ साहब ने क्या किया, एंड इट विल बी एविडेंट इन द एफबीआर रिकॉर्ड। ठीक है। एंड एज फार एज नवाज शरीफ साहब रिटर्न टू पाकिस्तान इज कंसर्न, इस पर कोई तय हुआ है कि इज इट सर्टन या अभी डाइसी है कि आना है नहीं आना है? देखिए जी, then again, inshallah he will be coming back in the next month or in the days following to the next month. लेकिन उनकी हेल्थ के जब उनके डॉक्टर्स से जब उन्होंने कहा सियासी डॉक्टर की कोई बात नहीं, आपको हाले स्ट्रीट के डॉक्टर्स जो उनको ट्रायल, जो उनको देखते हैं, जिनके पास वो पहले भी इसलिए गए क्योंकि आपके मुल्क से उनको एग्जाइल किया गया, उनको उठा के बाहर फेंका गया और उनके हार्ट के प्रोसीजर्स और वो सारे बाहर बरतानिया में हुए। तो जब वो डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करेंगे। मुसर्रत साहिबा जी, आपने एक तो वो आमदनी का जवाब सुन लिया कि आमदनी कहां से है और पूरी उन्होंने डिटेल बताई, और फिर जो टैक्स कितना कितना जमा होता रहा उसकी भी तफसील बताई। और शैला साहिबा ने भी ये कहा कि जो आप कहते हैं ना कि जी वो चले गए और फिर किस तरीके से चले गए, कोर्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप ही के डॉक्टर्स थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, वहां पर दीगर और लोग थे, आपने उनको इजाजत दी है, तो ये मामला उन पर ना डालिए। और अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है तो आप तो कानूनी तरीके से उनको वापस लाने की बातें कर रहे थे, आप लोगों ने उस तरीके का क्या किया? उस पर तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जी बिल्कुल, बड़ा मजेका खेज जवाब था, लेकिन मेरे भाई जज्बाती ज्यादा हो गए। उन्होंने, मेरा ख्याल है, कैप्टन सफदर साहब की ना मीडिया टॉक नहीं सुनी। उन्होंने कहा हमारे तो लंगर खाने, और बात कैप्टन सफदर करता ठीक है, वैसे उसने सही बात की। उसने कहा कि हमारे लंगर खाने तो ऐसे ही चलते रहते हैं, हमें क्या जरूरत है मतलब पैसे खर्चने की, ये तो हो जाते हैं। तो वो सही बात कर रहे थे कि ये जो लंगर खाना इनका था ना, जिसको वो लंगर खाना कह रहे थे, माशाल्लाह से वो जो सीरीज शुरू हुई है माशाल्लाह, वो जो जिस लंगर खाने से, जिस फकीर खाने की वो बात कर रहे थे, वो आपको भी पता है, इस 22 करोड़ आवाम को भी पता है। सिर्फ पता नहीं तो ये मेरे भाई जो लंदन में उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हक और सच की जो तर्जुमानी कर रहे हैं, इनको नहीं पता।
वो मेरे और आपके टैक्स का पैसा है जो उछल उछल के बाहर लग रहा है। कोई हलाल की आमदन मेहनत से कमाए हुए पैसे को इस तरह से आग नहीं लगाता। और दूसरी जहां तक रह गई बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो ट्वीट करते हैं महंगाई के ऊपर, लोगों की 2 वक्त की रोटी के ऊपर, और सियासत ये इस मुल्क में करना चाहते हैं। और इस मुल्क के लीडर बनने के ये क्या ये अहल हैं? अगर आपने किसी तबके को लीड करना हो तो उनके मसाइल आपके मसाइल होते हैं। लेकिन ये जो जिन्होंने कभी सर्दियां खिड़कियों के बगैर नहीं देखी और जो कभी महलों से निकले ही ना हो, उन्हें क्या पता? बिल्कुल जी, ये तो अशराफियां हैं, ये तो वो सल्तनते वो शरीफिया की जो माशाल्लाह से इन्होंने दास्तान रकम की है। तो इस शरीफ खानदान में और भी कोई शरीफ साहब के भाई थे, उनकी भी जरा देखें ना, उनका फाइनेंशियल स्टेटस देख लें। सिर्फ इन 2 की माशाल्लाह से जो आमदन थी उसको इस तरह से खाद लगी कि पूरे मुल्क के PIA, स्टील मिल, हर इदारा, रेलवे तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और इनकी लंदन, नवाज शरीफ साहब की वापसी कानूनी तरीके से जो होनी थी, लंदन तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो अपना रोल प्ले करना था, उसका क्या हुआ? दूसरी मैं बिल्कुल उसकी तरफ आ रही हूँ। दूसरी मेरे भाई, झूठ बोलने की आदत आपको है, आपके लीडरों को है, ड्रामे करने की आदत आपको है, लीडरों को है, जिनको आप डिफेंड करने आते हैं। उनको डिफेंड करते करते आपको भी नहीं पता कि कितने हजार झूठ आप बोल चुके हैं। हम हमेशा हकीकत पे मबनी बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि अवाम इज द बेस्ट जज, और जो मुझे और आपको सुन रहे हैं उनको पता है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। दूसरी जहां तक रह गई बात, पाकिस्तान में गंदम, भाई साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, 1956 से इंपोर्ट हो रही है। आप लोगों ने इस मुल्क की आबादी बढ़ती गई और उनको फीड करने की आपको फिक्र कोई नहीं थी, बिकॉज आपकी तो खुशियां, गाम, जायदादें, बच्चों के बच्चे, सारा नवाज शरीफ साहब की वापसी पे जरा कानूनी तरीके पे प्लीज बता दीजिएगा। और आपके सारी तोपों का रुख जो है वो पीएमएलएन की तरफ है। पीपल्स पार्टी को शायद आप इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, आप समझते हैं कि उनसे आपको कोई थ्रेट नहीं है, आपके लिए थ्रेट शायद पीएमएलएन ही है, इस वजह से आपकी सारी तवज्जो पीएमएलएन पर है। अली मुमताज, आपकी बात किसी हद तक हमें थ्रेट पीएमएलएन से तो हरगिज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के तो फिर जैसे भी लीडर हैं, जिस तरह से भी बन गए, वो तो इस मुल्क में बैठे हैं। असल लीडर तो उनके जन्नत में चले गए ना, जिन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई थी, जिनके नाम पे ये लोग आज भी सियासत कर रहे हैं, वो हैं तो मुकीम इधर ही ना। लेकिन जो मुल्क छोड़ के भाग जाएं, डीलों की आड़ में, अलमारियों में से और खिड़कियों में से देख रहे हो कि हमें कब डील, कोई लेटर ऑफर हो। और फवाद भाई ने ट्वीट बिल्कुल ठीक किया है कि ये तो इनको वो बूट मुयसर नहीं हो रहा, जब वो मुयसर होगा तो ये भागते हुए आ जाएंगे, बीमारियां खुद। और इनके एक बात और, ये तय है कि इनके मुआलिज इस मुल्क में ही है, ये लंदन से आपकी नजर में पीपल्स पार्टी कदरे बेहतर है, पीपल्स पार्टी कदरे बेहतर है? नहीं, आपने कहा ना कि थ्रेट, वो पीपल्स पार्टी अपने लिए थ्रेट खुद है। देखें, आपने शैला साहिबा से जब भी पीपल्स पार्टी का कोई भी लीडर बैठा हो ना, आप उनसे उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो हमें कहते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। एक सूबे में उनकी हुकूमत आज भी है, 13वां साल है, वहां की परफॉर्मेंस बताने की बजाय। पीपल्स पार्टी से हमें इसलिए खतरा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लिए जरदारी साहब ही काफी हैं, जिन्होंने फेडरल से एक रीजनल जमात बना दिया पीपल्स पार्टी को। कहीं इनका कोई, आपको पता है KPK में, बलोचिस्तान में, पंजाब में जिनका हाल है, तो जो एक सिंध की जमात है उससे हमें क्या मुशर्रफ साहिबा के मुताबिक पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब से ही खतरा है, किसी और से खतरा नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने बड़े तहम्मुल से इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने बड़ी लीडरशिप क्वालिटी बताई कि लीडर वो होते हैं जो अपनी आवाम की उमंगों पे पूरा उतरे और ये करें। क्या आप वो लीडर रखती हैं जिसने कहा था कि अगर मुल्क में जो है चीनी, आटा, ये सब चीजें महंगी हो, बिजली के बिल महंगे आए, गैस महंगी हो, तो समझो कि वजीर आजम चोर है? तो क्या आपके जमाने में ये सब कुछ सस्ता मिल रहा है आवाम को? क्या आप समझती हैं कि आपने आवाम से किए हुए वादे पूरे किए? आप पीपल्स पार्टी पे हंस रही हैं, मुझे ये बता दें कि कौन सी ऐसी हुकूमत गुजरी है जो उसकी हुकूमत और वो सारे बल्दियाती से लेके ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो हार रहा हो, इसलिए कि आप अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम तो, आप हमें जितना भी बुरा कह लें, हम तो आज भी पेशावर में 46,000 वोट लिए और आपने 52,000 वोट लिए। पेशावर की बात कर रही हूँ, जबकि आपकी वहां पे इतने साल से हुकूमत है। जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको आप
कभी सिंध आए तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया हुआ है। NICVD हमारे कितने बेहतर है, हमारे हॉस्पिटल की सहूलियात कितनी बेहतर है, हमारे पुल्स पे हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो कितना डिफरेंट है, हमारे यहाँ जो है किस तरह से जो है 15 यूनिवर्सिटीज हमने बना दी। आप तो आज तक एक गवर्नर हाउस को कुछ नहीं कर सके बल्कि उनके खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फजूल का जमा खर्चे जबानी, इसमें ये अगर आपने कुछ किया होता तो आज KP के इलेक्शन के बाद आपकी तंजीमें तहलील नहीं होती। आप नाम रख रही हैं दूसरों को, हम तो अदालतों के आगे खड़े हैं ना, लेकिन आपके केसेस तो नहीं चल रहे। जहां तक बात है वोट पॉलिश की, तो मैं समझती हूँ कि सारे वोट आप ही लोगों के पास हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि हम सब एक पेज पे और आप पॉलिश कर रहे हैं, वरना इतने नाअहल और निकम्मी हुकूमत तो कभी भी नहीं रही। ये कहते हैं ना कि बेनजीर साहिबा के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी 4 सूबों में थी, अब सिर्फ सिंध की हद तक महदूद होकर रह गई है। हाँ, अभी 4 सूबों में है, हम अभी 4 सूबों में है। हमने अभी KP में वोट लिए हैं। अगर इनको सियासत की तारीख पता हो तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि बीबी साहिबा के बाद कराची में हमारी मुसलसल सीटें बढ़ रही हैं और देही सिंध में से, और कराची ही की सीटें बढ़ने की वजह से हमारी पार्टी की मजीद सीटें बढ़ी हैं। और हम अवाम से ताल्लुक रखते हैं, हमारे ऊपर अंडे टमाटर नहीं फेंके जा रहे हैं जो आपके लोगों पे फेंके जा रहे हैं, जिनका जिक्र काबीना में हो रहा है। हमारे लोगों को लोग दिल से चाहते हैं और हमने अभी लाहौर में भी जो है एक अच्छा रिजल्ट दिया, खानेवाल में भी हमने एक बेहतरी की, और हम अपने नजरिए पे और अपनी ताकत पे बिलीव करते हैं। वो जो आपने कंफ्यूजन वाली बात की थी, वो कंफ्यूजन वाली बात वहीं पे अभी रह गई। मैं वक्फे के बाद चाहूंगा कि वापस आती सबसे पहले मुसर्रत साहिबा से एक तो ये कंफ्यूजन वाली बात भी कर लूं, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का जो वापसी का था कानूनी तरीके से कि हुकूमत अपना रोल प्ले करेगी, उस पर मुसर्रत साहिबा ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये सवाल भी हम वक्फे के बाद मुसर्रत साहिबा से पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। मुसर्रत साहिबा, क्विकली आपकी तरफ आऊंगा। एक तो वो नवाज शरीफ साहब का जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, प्लीज उसका बता दीजिए कि वो जो कानूनी तरीका आपने इख्तियार करना था उसका क्या हुआ? उस पर तो लगता है कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोर्ट के कहने पे इनको अलाउ किया था, ठीक है। उसके बाद अब जब ये बकौल इनके मुआलिजीन बताएंगे, लेकिन इनका इलाज इनको इस मुल्क में, आपको पता है इनके मौलिज कौन है और जहां ये इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे भी आए, जिस तरह से भी आए, ठीक हो के आए, बीमार हो के आए, लेकिन जो आप कह रहे थे कि हम अब लेकर आएंगे, उनका सामना करना पड़ेगा। भी हुई कि एब्सकॉन्डर हैं, उनको वापस लाया जाएगा, वो क्या हुआ? नहीं तो अली मुमताज, देखो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि 22 करोड़ आवाम के ऊपर वो कानून लागू है, सिवाय इस एक एब्सकॉन्डर के ऊपर। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, हमने भी जितने अवेलेबल हमारे पास जो कानूनी चाराजोई थी वो तो हमने की, लेकिन खैर से ये आए, अदालतों में जो केसेस हैं वो इनका स्वागत करेंगे, और इनको जो एक आम पाकिस्तानी को, एक आम शहरी को जो चोरी के ऊपर अगर सजा वो भुगतता है, तो इनको भी अपना चोरी का माल इस मुल्क के खजाने में वापस देना पड़ेगा, अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा। अगर इनको आला अदलिया जी कंफ्यूजन की मैं बात कर लूं, पार्टी में आपके कंफ्यूजन है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। अब जिस तरह आमिर लियाकत साहब का एक बयान सामने आया है कि जब तालिबान से बात हो सकती है तो मुत्तहिदा के बानी से क्यों नहीं बात हो सकती, तो ये तो आपकी पार्टी लाइन से बिल्कुल हटकर है। देखें, सबसे पहले कंफ्यूजन हमारी पार्टी में नहीं है, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, गुलामी नहीं है। लेकिन मैं आमिर लियाकत साहब से, वो बेहतर है कि वो बता सकते हैं कि अगर उन्हें इतना एतराज है या कुछ है। तो मेरा ये ख्याल है जब इस हद तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो तो फिर तो उनको लाइन अपनी लेनी चाहिए ना। तो मैं आमिर लियाकत के ऊपर आई डोंट वांट टू कमेंट, ये उनसे मेरा ख्याल है बेहतर है वो मीडिया पर। हमारी पार्टी में of course I disagree, 110% I disagree। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी पार्टी में इख्तलाफे राय बहरहाल है, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, गुलाम इब्ने गुलाम हम नहीं है। जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है हम देते हैं। दूसरी एक और बात अर्ज करूं, अभी पीपल्स पार्टी बड़ी जज्बाती हो जाती है, फिर अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताते। मैं इनको अर्ज करूं, KPK के अंदर आज भी वोट बैंक किसी जमात का सबसे ज्यादा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं अर्ज कर रही हूँ शैला आपा कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक KPK के अंदर सबसे ज्यादा है। दूसरी मैं बात कर लूँ ना जी,
अब मैं बात कर लूं, मैं चाहूंगा जरा बारी बारी आप प्लीज बात हो कर लें, जाए। क्विकली आप मुशर्रफ साहब बात मुकम्मल करें, फिर मैं शैला साहब को मौका दूंगा और फिर उसके बाद आखिर में क्लोजिंग कमेंट दानियाल साहब से भी। जी दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखें, हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक ही विजन है जिसपे हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर, हमारा कारकुन जुड़ा हुआ है। जजा और सजा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, उनको फारिग किया है। और ये केपीके के अंदर वरना ये लोग आगे आते क्योंकि पीटीआई वर्सेस पीटीआई चल रहा था। उसके बावजूद अगर आप देखें कि अगर विलेज काउंसिल्स की बात करें तो हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा है, सीटें हमारी। शैला साहब क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू जी। शैला साहब प्लीज जरा शैला साहब को मौका दीजिए। शैला साहब क्लोजिंग कमेंट जी। की बात की हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया, आपने फिर असद उमर को पार्टी की क़यादत दे दी जो कभी परफॉर्म नहीं कर सके। आप बता देना थोड़ी सी परफॉर्मेंस बता दें। सवाल आपसे हो रहा है ना, एक मिनट की सवाल परफॉर्मेंस आपसे हो रहा है बता दें। मुझसे नहीं हो रहा, सवाल आपसे हो रहा है। हमारा अगर नो परफॉर्मेंस आपस में मैंने कर रहे हैं, तो बात यही है कि जो पार्टी को बिलावल की परफॉर्मेंस प्लीज बताएं, सिवाय इसके कि अंकल्स की लिखी स्पीच पढ़ दें। थोड़ी सी बता दें, थोड़ी सी परफॉर्मेंस है कि आपकी हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस थी कि आपने हुकूमत के बजाय पार्टी को सजा दी। आपको पता ही नहीं क्या मसला। ठीक, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू दानियाल साहब। हमारी हुकूमत दानियाल साहब इसी तरह क्लोजिंग कमेंट लेने आज भी केपीके में वोट सबसे ज्यादा हमारा है। ये जी दानियाल साहब। और आपको कोई सीट नहीं मिली। इनके लिए सिर्फ एक चीज है कि शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा कि आज भी ये अपनी नलायकी, अपनी नाअहली और इनकॉम्पिटेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से ये हर बार और इनकलाबी लोग लंदन में बैठे हैं माशाअल्लाह। लाइक कैप्टन सफदर, लाइक मरियम नवाज, लाइक हसन नवाज, लाइक माशाअल्लाह, लाइकों की तो लाइन लगी हुई है, लाइक बिलावल। When such people are representing your country, your economy, this is our fate. The people who got them, लोगों ने इनको सिलेक्ट किया। मरियम को रिप्रेजेंट करना चाहिए और नवाज शरीफ को। लोगों को लेके आए हैं, कैसे लोगों को लेके आए हैं। आज भी पाकिस्तान की आवाम मुंतजिर है वो गवर्नर हाउसेस की दीवारें कब गिरेंगी। चलें जी, अब तो खैर तंजीम साजी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बल्कि हो गई है। पंजाब के भी नए सदर शफकत महमूद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये फैसलाबाद वाली करते हैं। दानियाल साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मुशर्रफ साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।